The next topic 5.5, that is mode of data transfer. This is most important topic of this unit number 5 of COA, and there are three modes of transfer, and we will learn all these three modes together. Okay, this video will be long, but we need to learn this all three methods, three modes of transmission together. Okay, so let us start. Modes of transfer, there are basically three modes of transfer. One is called programmed input output or program initiated input output. Another is interrupt initiated input output, and third mode is direct memory access, DMA. Okay, so first of all we will learn about a program input output or programmed initiated input output. Okay, so as we know that in this unit we are learning communication between processor and external peripherals of computer system. Okay, so who will initiate the transmission? मीन्स प्रोसेसर इनिशिएट करेगा या फिर बाहर के जो पेरिफेरल से वो इनिशिएट करेगा ट्रांसमिशन. ओके, तो अभी हमें पता है कि जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करें या कुछ प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इज सिंपली कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स, राइट. तो वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में जाएंगे सीपीयू के अंदर, अब उस प्रोग्राम को कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ डेटा चाहिए जो बाहर के पेरिफेरल से लेना है. ओके, तो क्या करेगा, वो प्रोग्राम जो रन हो रहा है अभी वो इनिशिएट करेगा ट्रांसमिशन. फिर सीपीयू है, सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट रहेगा वो फिर जिस डिवाइसेस में से कंटेंट लाना है बाहर के डिवाइसेस से, उससे के साथ जो इंटरफेस कनेक्ट है उस इंटरफेस को एनेबल करेगा. फिर उस इंटरफेस के अंदर एक प्रोग्राम रहेगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और फिर वो ट्रांसमिशन करेगा बाहर के डिवाइसेस से प्रोसेसर के अंदर. प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, मीन्स वाया दैट इंटरफेस. पहले मेन मेमोरी में कंटेंट रखेगा, फिर मेन मेमोरी से आगे होके सीपीयू में जाएगा. तो जो इनिशिएट करेगा सीपीयू, मतलब कि सीपीयू के अंदर जो अभी करंटली प्रोग्राम हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे कुछ कंटेंट चाहिए तो वो प्रोग्राम इनिशिएट करेगा. फिर वो इंटरफेस को एनेबल करेगा, इंटरफेस के अंदर भी एक और प्रोग्राम रहता है, फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो सुपरवाइज करेगा ट्रांसमिशन ऑफ का डेटा बिटवीन इनपुट एक्सटर्नल डिवाइस एंड बिटवीन प्रोसेसर. तो बाहर से कितने बीट ट्रांसमिट हुए, ओके, उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस मेंटेन करेगा, उसके लिए क्या कंट्रोल सिग्नल चाहिए वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. ये सब काम करेगा जो इंटरफेस के अंदर जो प्रोग्राम है दैट. सो लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज डायग्राम शोविंग प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और प्रोग्राम इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट. हियर वी आर हैविंग सीपीयू. ओके, दिस इज द इंटरफेस. ओके, एंड हियर वी आर हैविंग सेट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ओके, सो interface is connected with CPU using data bus, address bus and control bus, which can have two signal, either read or write. Okay, here input output devices are connected with interface using input output bus, which is bidirectional, data valid signal, control signal and data accepted control signal. Okay, we learned this about this data valid and data accepted in previous stop and handshaking method, right? So this is the interface. This interface will have program which will get executed whenever the communication takes place between the CPU and input output device. The program residing here will execute and it will supervise the transmission of data from this input output devices and CPU, between this input output device and CPU. So input output devices does not have direct access to memory. There is an interface between CPU and IO devices. Okay, just this one is the interface. When a byte of data is available, the device places it in the input output bus and enables it data valid byte. Okay, means not necessary always the CPU will require data from external devices. CPU is currently executing some program. Now it is having result. That result to be displayed on monitor, on a screen. Then the CPU will also send data to external devices, either for the purpose of displaying or for the printing. Okay. So the interface accepts the byte into its data register and enables data accepted line. The interface set bits in the status register, that refers to flag bits, which will indicate the conditions for current transmissions. The device can now disable data valid line, but it will not transfer another byte until the data accepted line is enabled by the interface. Okay, we know this. We learned this in our stop, control and handshaking method. Program is returned for the computer to check the flag in status register to determine if the byte is placed in the data bus register, by the input output device or not. Okay, means suppose
ये इनपुट डिवाइस है और उसको अंदर मेमोरी में कुछ कंटेंट भेजना है। ओके, इनिशिएट किया है इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसने। तो यहाँ से जब पहले तो क्या करेगा कि वो जो डेटा है उसकी वैलिडिटी इंश्योर करके फिर डेटा बस में रख देगा और फिर डेटा वैलिड सिग्नल भेजेगा इसे। और जब ये सक्सेसफुली रिसीव कर लेगा तो इंटरफेस फिर डेटा एक्सेप्टेड कंट्रोल सिग्नल भेजेगा एक्सटर्नल डिवाइस को। ओके, वंस द फ्लैग इज क्लियर्ड द इंटरफेस डिसेबल्स द डेटा एक्सेप्टेड लाइन्स एंड डिवाइस कैन देन ट्रांसफर द नेक्स्ट डेटा बाइट। ओके, मीन्स एक ट्रांसमिशन यहाँ से पूरा हुआ, इसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर ये दूसरा बाइट ट्रांसफर करेगा लाइक दिस। सो दिस इज अबाउट program input output. Look at this flow chart how it works. So initially the program which is residing in interface will read status of registers. Okay, then it will check flag bits. If flag bit is reset yet, then it will keep checking the status. When it will found the flag value is equal to 1, means flag is set, now the transmission is beginning. Okay, then it will read data register. Okay, and then from data register it will transfer data to memory. Okay, memory means main memory which is connected with the processor. Then check if the operation is complete. If no, it will again repeat. If it is yes, then it will continue with the program. Okay, so this is the program input output mode. Another method is interrupt initiated input output. Now the program, okay, which is residing in interface will not begin the transmission. Then who will begin the transmission? The transmission will be initiated by external devices, external peripherals. Okay, whenever external peripherals have certain data to transfer into memory, they will send an interrupt signal to CPU, and then CPU will stop its current execution. It will allocate resources to that transfer circuit. Okay, it will generate a necessary control signals for that, means address bus and data bus and the memory address is where that content to be stored, and then that transmission will take place. And on that completing the transmission, then CPU will again resume the work it was doing previously. Okay. So interrupt initiated input output, in program initiated we just learned a CPU stays in the loop until the input output unit indicate that it is ready for data transfer. This is time consuming process and keep processor busy needlessly. Means processor check करता रहेगा कि बाहर के डिवाइस को कुछ ट्रांसफर करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, करना है कि नहीं है. सो प्रोसेसर इन्फाइनाइट लूप में ही रहेगा. मीन्स इन्फाइनाइट नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ टाइम वेस्ट करेगा. उससे अच्छा बेटर है कि प्रोसेसर अपना जो एग्जीक्यूशन है उसे कंटिन्यू करे. जब भी एक्सटर्नल डिवाइस को कुछ ट्रांसमिशन करना होगा तो दैट विल सेंड इंटरप्ट सिग्नल टू CPU. Okay, so that is the better option. So it can be avoided by using interrupt facility and a special command to inform CPU when data are available from the devices. While CPU is running program, it does not check the flag. When the flag is set, the computer is interrupted. The CPU deviates from what it is doing to take care of the input output transfer. मीन्स जब बाहर के एक्सटर्नल डिवाइस को कुछ डेटा ट्रांसफर करना होगा तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करके CPU को भेजेगा. CPU क्या करेगा, अपना जो करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है प्रोग्राम का उसे स्टॉप करेगा और फिर उसके पास जो रिसोर्सेज है कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके एड्रेस बस, डेटा बस, फिर वो एलोकेट करेगा ट्रांसफ़र को. फिर जो एक्सटर्नल डिवाइस से लेके मेमोरी तक जो भी ट्रांसमिशन करना है वो ट्रांसमिशन होगा कंटेंट का. वो पूरा होने के बाद CPU फिर अपना काम जो स्टॉप किया था वो उसे वापस रिज्यूम करेगा. Okay. So after transmission complete, the CPU return back to the task it was doing before, and this is interrupt initiated method. And the most important is direct memory access, the third mode of transmission. अभी हमने देखा कि फर्स्ट हम पढ़े कि प्रोग्राम इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, जिसमें क्या हो रहा था कि जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट करेगा डेटा ट्रांसमिट को. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करेगा, एक्सटर्नल डिवाइस है उसे जब भी कुछ ट्रांसमिशन करना होगा तो वो इनिशिएट करके CPU को इंटरप्ट सिग्नल भेजेंगे और ट्रांसमिशन होगा. ओके. अभी क्या होता है कि आइदर प्रोग्राम इनिशिएट करे या तो फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस CPU को इंटरप्ट करे. दोनों सिचुएशन में CPU को ट्रांसमिशन का पूरा चार्ज हैंडल करना होता है. तो क्या हो जाएगा कि CPU अपना जो मेन एग्जीक्यूशन है वो बार बार उसे डिस्टर्ब होते रहेगा.
तो एक और अल्टरनेटिव है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक और एक्स्ट्रा चिप लगा दें, एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा दें जो ट्रांसमिशन का सब काम करेगा और सीपीयू सिर्फ अपना जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसका ही काम करेगा। एंड हम जो डिवाइस एक्स्ट्रा लगाएंगे मीन्स वो एक्स्ट्रा चिप लगाएंगे, दैट चिप इज़ नथिंग बट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए चिप। ओके, सो इन डीएमए interfaces transfers data into and out of a memory through the memory bus. DMA controller performs all the input-output operation between input-output devices and memory while CPU performs other tasks. When input-output device has a data to transfer, it sends DMA request to DMA controller. Okay, means बाहर के डिवाइस को कुछ ट्रांसमिशन करना है तो अभी इंटरप्ट वो CPU को नहीं भेजेगा, वो जो हमने एक्स्ट्रा चिप लगा के रखी है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए वाली, उसको वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि वी आर हैविंग सर्टेन कंटेंट टू ट्रांसफर इन मेमोरी, हमें कुछ हमारे पास कीबोर्ड है, सपोज कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेके मेन मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो सीपीयू को अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो जो डीएमए चिप है उसे रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर वो डीएमए चिप क्या करेगी, सीपीयू को अभी क्या है, देखो पहले हमने देखा कि सीपीयू के पास 3 बसेस है, जो ट्रांसमिशन करे जो बस चाहिए बस का कंट्रोल तो सीपीयू के पास है, लेकिन रिक्वेस्ट तो अभी आई है ट्रांसमिशन की इनपुट डिवाइसेस से, मीन्स एक्सटर्नल डिवाइस से डीएमए के पास। अब उसके पास बसेस तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, डीएमए सीपीयू को हल्के से थोड़ा डिस्टर्ब करके उसके पास से बस का कंट्रोल रिक्वेस्ट करेगा कि बस का कंट्रोल, तीनों बसेस है उसका कंट्रोल मुझे दे दो और अपना अपना काम कंटिन्यू करो, मैं ट्रांसमिशन का काम कर लेता हूँ, लाइक दैट। ओके, सो then DMA controller takes control of buses from CPU and CPU also provides needed memory addresses. मीन CPU उसका बस का कंट्रोल भी देगा, साथ साथ में ये भी इंडिकेट करेगा कि बाहर से कुछ डेटा आ रहा है वो मेमोरी में स्टोर करना, तो कौन से एड्रेसेस भी स्टोर करना है। मीन्स अपने पास मेन मेमोरी है तो मेन मेमोरी में कुछ एड्रेसेस फ्री रहेंगे, उसका रिकॉर्ड CPU के पास रहेगा। ओके, तो CPU के पास जो एड्रेस फ्री है वो उसका एड्रेस डीएमए को देके जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे स्टोर करना, बाकी ऊपर वाले कोई भी मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं करना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो अलॉन्ग विद द कंट्रोल ऑफ बसेस CPU विल प्रोवाइड सेट ऑफ एड्रेसेस वेयर द डेट इनपुट कैन बी स्टोर्ड। ओके, सो then DMA performs all the data transfer between memory and input output devices while CPU works on another task. So look at this, this is a DMA circuit, direct memory access. Okay, so the components of DMA circuit are, here we are having control unit, okay, here we are having address register, word count register, control register, and here we are having address bus buffer, मीन्स हमने देखा कि CPU जितने भी एड्रेसेस का देखा कि इतने एड्रेसेस यूज़ कर सकते हो तुम इनपुट आउटपुट के लिए मेमोरी में से, तो वो सब एड्रेसेस यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ओके, फिर इसमें से जो भी एड्रेस पे मेमोरी में से कुछ रीड या राइट करना है इसको, तो वो एड्रेस इस रजिस्टर में मुकेगा, ये फिर इंटरनल बस मीन्स एड्रेस बस के साथ कनेक्ट होगा ये एड्रेस रजिस्टर, और फिर वो एड्रेस बस में वो एड्रेस जाएगा मेमोरी का, वो मेमोरी लोकेशन एनेबल होगा, फिर डेटा बस के द्वारा उसमें ट्रांसमिशन होगा। लेकिन जब डेटा बस बिजी है तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे डेटा बस बफर में कंटेंट स्टोर करके रखेगा। ओके, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर वर्ड काउंट रजिस्टर, इट विल कीप अ ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स बीइंग ट्रांसफर्ड, उसका काउंट रखेगा कितने वर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं। ओके, एंड देन कंट्रोल रजिस्टर विल स्टोर कंट्रोल सिग्नल्स नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस DMA सर्किट इज कंट्रोल लॉजिक। यहाँ पे कितनी पिन है देखो, फर्स्ट इज DS मीन्स DMA सिलेक्ट। CPU हमारे पास एक से ज़्यादा DMA कंट्रोलर हो सकते हैं। अब जिस DMA को ये DS1 मिलेगा, मीन्स इसको 1 कंट्रोल सिग्नल मिलेगा, वो पर्टिकुलर DMA एक्टिवेट होगा, बाकी सब डिसेबल रहेगा। CPU बोलेगा कि चलो 3 है ना हमारे पास, तो उसमें से ये DMA ट्रांसमिशन का काम करेगा, तो उसको वो कंट्रोल सिग्नल 1 दे देगा, तो वो DMA की ये DS वाली पिन को 1 कंट्रोल सिग्नल मिलेगा, तो ये एनेबल हो जाएगा ये DMA। ओके, उसके बाद है रजिस्टर सिलेक्ट, मीन्स इसके किस रजिस्टर को सिलेक्ट करना है, मीन्स CPU को स्टेटस भी चाहिए थोड़े थोड़े टाइम बाद कि ट्रांसमिशन क्या हुआ, कितने वर्ड हुए, तो वो इसमें से पर्टिकुलर रजिस्टर को एनेबल करेगा उसका स्टेटस जानने के लिए। ओके, तो दैट विल बी फ्रॉम दिस पिन। अब रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन क्या करना है, मीन्स मेमोरी में से रीड करना है या बाहर से कंटेंट है वो मेमोरी में राइट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल सिग्नल को वैल्यू मिलेगी, कंट्रोल पिन को वैल्यू मिलेगी। ओके, फिर BR एंड BG मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ओके, अब ये कब यूज़ होगी, मान लो ये DMA सर्किट है, बाहर एक्सटर्नल डिवाइस है, उससे कुछ ट्रांसमिशन करना है मेमोरी के साथ, तो वो CPU को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, वो DMA को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जो रिक्वेस्ट भेजेगी वो यहाँ से आएगी DMA रिक्वेस्ट, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बाहर के, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी DMA को। फिर DMA क्या करेगा कि चलो आई विल अलाउ यू टू ट्रांसमिट, कि चलो मैं ट्रांसमिशन का काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी बसेस का कंट्रोल नहीं है। तो वो क्या करेगा, CPU को बर्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, ये पेन से देखो दिस इज आउटवर्ड, ये DMA से बाहर की ओर जा रही है, कहाँ की ओर जा रही है, प्रोसेसर की तरफ, कि बस रिक्वेस्ट भेजेगा कि अब मेरे को बस के सभी कंट्रोल दे दो, मैं ट्रांसमिशन कर लूँ। ओके, कीबोर्ड में से कुछ कंटेंट आ रहा है, उसे मेमोरी में स्टोर करना है। ओके, तो this bus request is being okay, which is used to send a request for granting a bus to CPU। और जब CPU से बस का कंट्रोल देगा तो CPU यहाँ पे एक और पिन है BG बस ग्रांटेड, इसको 1 सिग्नल भेजेगा कि यस गिवन, कंट्रोल इज गिवन। okay, and then once the DMA will acquire the control of all the buses, DMA will acknowledge input devices, okay, I have buses now send me the data। okay, and here we are having interrupt pin, whenever this DMA will complete the transmission, it will interrupt CPU, okay, I have completed transmission, okay, and it will again give control of buses back to the CPU। okay, so this is the direct memory access। okay, so what we learn is DMA controller needs circuit to communicate with CPU and input output devices. It needs address register, word count register and address bus. The word count register specifies the number of words must be transmitted। okay, when BG is equal to 1, CPU has given control of buses to DMA controller, so DMA can transfer data by specifying address in address bus and activating read or write control signal, and the control register specifies mode of transmission। okay, so that's it about mode of transmission, where we learn program initiated input output, interrupt initiated input output, and direct memory access. That's it।